کہانی کو ہم نے جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو ہماری چینل کی ویڈیوز پسند آ رہی ہیں یا ہمارا انداز پسند ہے تو کہانی کو پورا سن لیجئے۔ اگر آپ کو یہ اچھی لگے تو پھر اس کے ساتھ ہی بہتے جائیے اور سنیے سریندر پرکاش کی کہانی بیجو کا۔ پریم چند کی کہانی کا ہوری اتنا بوڑھا ہو چکا تھا کہ اس کی پلکوں اور بھوؤں تک کے بال سفید ہو گئے تھے، کمر میں خم پڑ گیا تھا اور ہاتھوں کی نسیں سانولے کھردرے گوشت سے ابھر آئی تھیں۔ اس اسنا میں اس کے ہاں 2 بیٹے ہوئے تھے جو اب نہیں رہے۔ ایک گنگا میں نہا رہا تھا کہ ڈوب گیا اور دوسرا پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ پولیس کے ساتھ اس کا مقابلہ کیوں ہوا اس میں کچھ ایسی بتانے کی بات نہیں۔ جب بھی کوئی آدمی اپنے وجود سے واقف ہوتا ہے اور اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی بے چینی محسوس کرنے لگتا ہے تو اس کا پولیس کے ساتھ مقابلہ ہو جانا قدرتی ہو جاتا ہے۔ بس ایسا ہی کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا اور بوڑھے ہوری کے ہاتھ ہلکے ہتھے کو تھامے ہوئے ایک بار ڈھیلے پڑے، ذرا کانپے اور پھر ان کی گرفت اپنے آپ مضبوط ہو گئی۔ اس نے بیلوں کو ہانک لگائی اور ہلکا پھل زمین کا سینہ چیرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ ان دونوں بیٹوں کی بیویاں تھیں اور آگے ان کے 5 بچے، 3 گنگا میں ڈوبنے والے کے اور 2 پولیس مقابلے میں مارے جانے والے کے۔ اب ان کی سب کی پرورش کا بار ہوری پر آن پڑا تھا اور اس کے بوڑھے جسم میں خون زور سے گردش کرنے لگا تھا۔ اس دن آسمان سورج نکلنے سے پہلے کچھ زیادہ ہی سرخ تھا اور ہوری کے آنگن کے کنویں کے گرد 5 بچے ننگ دھڑنگ بیٹھے نہا رہے تھے۔ اس کی بڑی بہو کنویں سے پانی نکال کر ان پر باری باری انڈیلتی جا رہی۔ چھوٹی بہو بڑی بڑی روٹیاں بنا کر چنگیری میں ڈال رہی تھی اور ہوری اندر کپڑے بدل کر پگڑی باندھ رہا تھا۔ پگڑی باندھ کر اس نے طاقچے میں رکھے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ سارے چہرے پر لکیریں پھیل گئیں۔ اس نے قریب ہی لٹکی ہوئی ہنومان جی کی چھوٹی سی تصویر کے سامنے آنکھیں بند کر کے دونوں ہاتھ جوڑ کر سر جھکایا اور پھر دروازے میں سے گزر کر باہر آنگن میں آ گیا۔ سب تیار ہیں؟ اس نے اونچی آواز سے پوچھا۔ ہاں باپو، سب بچے ایک ساتھ بول اٹھے۔ بہوؤں نے اپنے سروں پر پلو درست کیے اور ان کے ہاتھ تیزی سے چلنے لگے۔ ہوری نے دیکھا کہ کوئی بھی تیار نہیں تھا، سب جھوٹ بول رہے تھے۔ اس نے سوچا یہ جھوٹ ہماری زندگی کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اگر بھگوان نے ہمیں جھوٹ جیسی نعمت نہ دی ہوتی تو لوگ دھڑا دھڑ مرنے لگ جاتے، اس کے پاس جینے کا کوئی بہانہ نہ رہ جاتا۔ ہم پہلے جھوٹ بولتے ہیں اور پھر اسے سچ کرنے کی کوشش میں دیر تک زندہ رہتے ہیں۔ ہوری کے پوتے پوتیاں اور بہویں ابھی ابھی بولے گئے اس جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے پوری طرح جٹ گئے تھے، جب تک ہوری نے ایک کونے میں پڑے کٹائی کے اوزار نکالے اور اب وہ سچ مچ تیار ہو چکے تھے۔ ان کا کھیت لہلہا اٹھا تھا، فصل پک گئی تھی اور آج کٹائی کا دن تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی تہوار ہو۔ سب بڑے چاؤ سے جلد از جلد کھیت پر پہنچنے کی کوشش میں تھے کہ انہوں نے دیکھا سورج کی سنہری کرنوں نے سارے گھر کو اپنے جادو میں جکڑ لیا ہے۔ ہوری نے انگوچھا کندھے پر رکھتے ہوئے سوچا، کتنا اچھا سمے آ پہنچا ہے۔ نہ بنیے کا کھٹکا، نہ انگریز کی زور زبردستی اور نہ زمیندار کا حصہ۔ اس کی نظروں کے سامنے ہرے ہرے خوشے جھوم اٹھے تھے۔ چلو بابو، اس کے بڑے پوتے نے اس کی انگلی پکڑ لی، باقی بچے اس کی ٹانگوں کے ساتھ لپٹ گئے۔ بڑی بہو نے کوٹری کا دروازہ بند کیا اور چھوٹی بہو نے روٹیوں کی پوٹلی سر پر رکھی۔ ویر بجرنگی کا نام لے کر سب باہر کی 4 دیواری والے دروازے میں سے نکل کر گلی میں آ گئے اور پھر دائیں طرف مڑ کر اپنے کھیت کی طرف بڑھنے لگے۔ گاؤں کی گلیوں گلیاروں میں چہل پہل شروع ہو چکی تھی، لوگ کھیتوں کی طرف جا رہے تھے، سب کے دلوں میں مسرت کے انار چھوٹتے محسوس ہو رہے تھے، سب کی آنکھیں پکی فصلیں دیکھ کر چمک رہی تھیں۔ ہوری کو لگا کہ جیسے زمین کل سے آج ذرا مختلف ہے۔ اس نے پلٹ کر اپنے پیچھے آتے ہوئے بچوں کی طرف دیکھا، وہ والد ویسے ہی لگ رہے تھے جیسے کسان کے بچے ہوتے ہیں، سانولے مریل سے جو جیپ گاڑی کے پہیوں کی آواز اور موسم کی آہٹ سے ڈر جاتے ہیں۔ بہویں ویسی ہی تھیں جیسی غریب کسان کی بیوہ عورتیں ہوتی ہیں، چہرے گھونگھٹوں میں چھپے ہوئے اور لباس کی ایک ایک سلبٹ میں غریبی جوؤں کی طرح چھپی بیٹھی تھی۔ وہ سر جھکا کر آگے بڑھنے لگا۔
गांव के आखिरी मकान से गुजर कर आगे खुले खेत थे। करीब ही रहत खामोश खड़ा था। नीम के दरख्त के नीचे एक कुत्ता बेफिक्री से सोया हुआ था। दूर तबेले में कुछ गायें, भैंसें और बैल चारा खाकर फुंकार रहे थे। सामने दूर दूर तक लहराते हुए सुनहरी खेत थे। इन सब खेतों के बाद जरा दूर जब ये सब खेत खत्म हो जाएंगे और फिर छोटा सा नाला पार करके अलग थलग होरी का खेत, जिसमें झोना पककर अंगड़ाइयां ले रहा था, वो सब पगडंडियों पर चलते हुए दूर से ऐसे लग रहे थे जैसे रंग बिरंगे कपड़े सूखी घास पर रेंग रहे हों। वो सब अपने खेत की तरफ जा रहे थे, जिसके आगे थल था, दूर दूर तक फैला हुआ, जिसमें कहीं हरियाली नजर न आती थी। बस थोड़ी बेजान मिट्टी थी जिसमें पाँव रखते ही धंस जाता था, और मिट्टी यूं भरभरी हो गई थी कि जैसे उसके दोनों बेटों की हड्डियां चिता में जलकर फूल बन गई थीं और फिर हाथ लगाते ही रेत की तरह बिखर जाती थीं। वो थल धीरे धीरे बढ़ रहा था। होरी को याद आया पिछले 50 वर्षों में वो 2 हाथ आगे बढ़ाया था। होरी चाहता था कि अब जब तक बच्चे जवान हों वो थल इसके खेत तक ना पहुँचे, और तब तक वो खुद किसी थल का हिस्सा बन चुका होगा। पगडंडियों का ना खत्म होने वाला सिलसिला, और इस पर होरी और उसके खानदान के लोगों की हरकत करते हुए नंगे पांव। सूरज आसमान की मशरिकी खिड़की में से झांक कर देख रहा था। चलते चलते उनके पाँव मिट्टी से अट गए थे। कई इर्द गिर्द के खेतों में लोग कटाई करने में मसरूफ थे। वो आते जाते को राम राम कहते और फिर किसी अनजाने जोश और वलवले के साथ टहनियों को दरांती से काट कर एक तरफ रख देते। उन्होंने बारी बारी नाला पार किया। नाले में पानी नाम को भी ना था। अंदर की रेत मिली मिट्टी बिल्कुल खुश्क हो चुकी थी और इस पर अजीब व गरीब नक्श व निगार बने थे। वो पानी पाँव के निशान थे और सामने लहलहाता हुआ खेत नजर आ रहा था। फसल कटेगी तो उनका आंगन फूस से भर जाएगा और कोठरी अनाज से, फिर खटिया पर बैठकर भात खाने का मजा आएगा। क्या डकारें आएंगी पेट भर जाने के बाद, इन सब ने एक ही बार सोचा। अचानक होरी के कदम रुक गए। वो सब भी रुक गए। होरी खेत की तरफ हैरानी से देख रहा था। वो सब कभी होरी को और कभी खेत को देख रहे थे कि अचानक होरी के जिस्म में जैसे बिजली की सी फुर्ती पैदा हुई। उसने चंद कदम आगे बढ़कर बड़े जोश से आवाज लगाई, अबे कौन है ए? और फिर सबने देखा। उनके खेत में से कोई जवाब ना मिला। अब वो करीब आ चुके थे और खेत के दूसरे कोने पर दरांती चलने की सड़ाप सड़ाप आवाज आ रही थी। सब कदरे सहम गए। फिर होरी ने हिम्मत से ललकारा, कौन है हराम का जना, बोलता क्यों नहीं? और अपने हाथ में पकड़ी दरांती सूंघ ली और अपने हाथ में पकड़ी दरांती सूंघ ली। अचानक खेत के परले हिस्से में से एक ढांचा सा उभरा और जैसे ही मुस्कुराकर उन्हें देखने लगा, फिर उसकी आवाज सुनाई दी, मैं हूँ होरी काका, बिजू का। उसने अपने हाथ में पकड़ी दरांती फजा में हिलाते हुए जवाब दिया। सबकी मारे खौफ के घुटी घुटी सी चीख निकल गई। उनके रंग जर्द पड़ गए और होरी के होठों पर गोया सफ़ेद पपड़ी सी जम गई। कुछ देर के लिए सब सकते में आ गए और बिल्कुल खामोश खड़े रहे। वो कुछ देर कितनी थी, एक पल, एक सदी या फिर एक युग, इसका उनमें से किसी को अंदाज़ा न हुआ, जब तक उन्होंने होरी की गुस्से से कांपती हुई आवाज़ न सुनी। उन्हें अपनी ज़िंदगी का एहसास न हुआ। तुम, बिजू का, तुम, अरे तुमको तो मैंने खेत की निगरानी के लिए बनाया था, बांस की फांकों से, और तुमको इस अंग्रेज शिकारी के कपड़े पहनाए थे जिसके शिकार में मेरा बाप फांका लगाता था, और वो जाते हुए खुश होकर अपने फटे हुए खाकी कपड़े मेरे बाप को दे गया था। तेरा चेहरा मेरे घर की बेकार हांडी से बना है और इस पर अंग्रेज शिकारी का टोपा रख दिया है। तू बेजान पुतला मेरी फसल काट रहा है। होरी कहता हुआ आगे बढ़ रहा था और बिजू का बदस्तूर उनकी तरफ देखता हुआ मुस्कुराता रहा था, जैसे इस पर होरी की किसी बात का कोई असर न हुआ हो।
जैसे ही वो करीब पहुंचे उन्होंने देखा फसल एक चौथाई के करीब कट चुकी है और बिजूका का इसके करीब दरांती हाथ में लिए मुस्कुरा रहा है। वो सब हैरान हुए कि उसके पास दरांती कहाँ से आ गई। वो कई महीनों से उसे देख रहे थे। बेजान बिजूका का दोनों हाथों से खाली खड़ा रहता था, मगर आज वो आदमी लग रहा था, उन जैसा आदमी। ये मंजर देखकर तो जैसे होरी पागल हो गया। उसने आगे बढ़कर उसे एक जोर का धक्का दिया, मगर बिजूका तो अपनी जगह से बिल्कुल न हिला। अलबत्ता होरी अपनी ही जोर की मार खाकर दूर जा गिरा। सब लोग चीखते हुए होरी की तरफ बढ़े। वो अपनी कमर पर हाथ रखे उठने की कोशिश कर रहा था। सब ने उसे सहारा दिया और उसने खौफजदा होकर बिजूका की तरफ देखते हुए कहा, तू तू मुझसे भी ताकतवर हो चुका है बिजूका, मुझसे, जिसने तुम्हें अपने हाथों से बनाया अपनी फसल की हिफाजत के वास्ते। बिजूका हस्बे मामूल मुस्कुराता रहा, फिर बोला, तुम खामखा खफा हो रहे हो होरी काका। मैंने तो सिर्फ अपने हिस्से की फसल काटी है, एक चौथाई। लेकिन तुमको क्या हक है मेरे बच्चों का हिस्सा लेने का? तुम कौन होते हो? मेरा हक है होरी काका, क्योंकि मैं हूँ और मैंने इस खेत की हिफाजत की है। लेकिन मैंने तो तुम्हें बेजान समझकर यहाँ खड़ा किया, और बेजान चीज़ का कोई हक नहीं। ये तुम्हारे हाथ में दरांती कहाँ से आ गई? बिजूका ने एक जोरदार कहकहा लगाया। तुम बड़े भोले हो होरी काका, खुद ही मुझसे बातें कर रहे हो और फिर मुझको बेजान समझते हो। लेकिन तुमको ये दरांती और जिंदगी किसने दी? मैंने तो नहीं दी थी, ये मुझे आपसे आप मिल गई। जिस दिन तुमने मुझे बनाने के लिए बांस की फांकें चीरी थीं, अंग्रेज शिकारी के फटे पुराने कपड़े लाए थे, घर की बेकार हांडी पर मेरी आंखें व आँख और कान बनाए थे, उसी दिन से इन सब चीज़ों में ज़िंदगी कुल बुला रही थी। और ये सब मिलकर मैं बना और फसल पकने तक यहाँ खड़ा रहा, और एक दनाती मेरे सारे वजूद में से आहिस्ता आहिस्ता निकलती रही। और जब फसल पक गई वो दरांती मेरे हाथ में थी, लेकिन मैंने तुम्हारी अमानत में ख़यानत न की। मैं आज के दिन का इंतज़ार करता रहा और आज तुम अपनी फसल काटने आए हो। मैंने अपना हिस्सा काट लिया, उसमें बिगड़ने की क्या बात? बिजूका ने आहिस्ता आहिस्ता सब कहा, ताकि उन सबको इसकी बात अच्छी तरह समझ में आ जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये सब साजिश है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं मानता, ये सब छलावा है। मैं पंचायत से इसका फैसला कराऊंगा। तुम दरांती फेंक दो, मैं तुम्हें एक दिन का भी नहीं ले जाने दूंगा। होरी चीखा और बेजूका मुस्कुराते हुए दरांती फेंक दी। गांव की चौपाल पर पंचायत लगी। पंच और सरपंच सब मौजूद थे। होरी अपने पोते पोतियों के साथ बीच में बैठा था। इसका चेहरा मारे गम के मुरझाया हुआ था। उसकी दोनों बहुएं दूसरी औरतों के साथ खड़ी थीं और बिजूका का इंतजार हो रहा था। आज पंचायत ने अपना फैसला सुनाना था। मुकदमे के दोनों फरीक अपने अपने बयान दे चुके थे। आखिर दूर से बिजूका का खैरामा खैरामा आता दिखाई दिया। सबकी नज़रें उसकी तरफ उठ गईं। वो वैसे ही मुस्कुराता हुआ आ रहा था। जैसे ही वो चौपाल में दाखिल हुआ, सब गैर इरादी तौर पर उठ खड़े हुए और उनके सर ताज़ीमन झुक गए। होरी ये तमाशा देखकर तड़प उठा। उसे लगा कि जैसे बिजूका ने सारे गांव के लोगों का ज़मीर खरीद लिया है, पंचायत का इंसाफ खरीद लिया है। वो तेज़ पानी में बेबस आदमी की तरह हाथ पांव मारता हुआ महसूस करने लगा। आखिर पंच ने अपना फैसला सुनाया। होरी का सारा वजूद कांपने लगा। उसने पंचायत का फैसला कबूल करते हुए फसल का चौथाई हिस्सा बेजूका को देना मंजूर कर लिया, और फिर खड़ा होकर अपने पोतों से कहने लगा, सुनो, ये शायद हमारी ज़िंदगी की आखिरी फसल है। अभी थल खेत से कुछ दूरी पर है। मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ, अपनी फसल की हिफाजत के लिए फिर कभी बिजूका ना बनाना। अगले बरस जब हल चलेंगे, बीज बोया जाएगा और बारिश का अमृत खेत में से कोकनों को जन्म देगा, तो मुझे एक बांस पर बांध कर एक खेत में खड़ा कर देना। बिजूका का कोई जगह पर इस्तेमाल ना करना। मैं तब तक तुम्हारी फसलों की हिफाजत करूँगा जब तक थल आगे बढ़कर खेत की मिट्टी को निगल न ले और तुम्हारे खेतों की मिट्टी भुरभुरी नहीं हो जाए। मुझे वहाँ से हटाना नहीं,
वहीं रहने देना, ताकि जब लोग देखें तो उन्हें याद आए कि बिजू का नहीं बनाना, कि बिजू का बेजान नहीं होता। आप से आप इसे ज़िंदगी मिल जाती है और इसका वजूद इसे दरांती थमा देता है और उसका फसल की 1/4 हिस्से पर हक हो जाता है। होरी ने कहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने खेत की तरफ बढ़ा। उसके पोते और पोतियां उसके पीछे थे और फिर उसकी बहुएं और उनके पीछे गांव के दूसरे लोग सर झुकाए हुए चल रहे थे। खेत के करीब पहुंचकर होरी गिरा और ख़त्म हो गया। उसके पोते पोतियों ने उसे एक बांस से बांधना शुरू किया और बाकी के लोग ये तमाशा देखते रहे। बीजूका ने अपने सर पर रखा शिकारी टोपा उतार कर सीने के साथ लगा लिया और अपना सर झुका दिया। अगर कहानी पसंद आई हो तो अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं ये भी आप बता सकते हैं। नहीं बताना चाहें तो वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। जैसा आप चाहें वैसा करें, क्योंकि लिटरेचर हमें यही सिखाता है